Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो उसकी थीम है, टॉपिक है, उसको समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. So let's get started. And before I begin, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video. So today's topic, today is 20th of June. So the first topic is post-COVID economy and employment, Tamil Nadu re-lockdown, rehabilitation for migrant workers, and US decoupling from China. So this is the important topic that we'll be discussing. And apart from this, there would be MCQs with explanation. तो कल के जो MCQs के questions थे उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के एंड में कुछ MCQs के questions भी डिस्कस करेंगे. So the first topic, that is post-COVID economy and employment. This is there in the Indian Express. This is written by Ashish Kundra. He is basically an author of an IAS officer. He is an IAS officer, and his views are that he's expressed as personal. So basically, he talks about the economy and its employment issues that would be there post-COVID. So this topic would be relevant for your general studies paper 3, right? So first thing first, he said that COVID-19 has induced a domino effect in the global job market. What is a domino effect? Basically, domino effect means a situation in which something is usually bad is happening and causing other event to happen on the same order. So that is something is called domino effect. तो ये इसको domino effect कहते हैं. Now post-COVID जो 19 के बाद जो सिचुएशन है, द वर्ल्ड है, दैट विल रीडिफाइन इट्स रूल्स ऑफ ऑफिसेज. बेसिकली जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, सो देयर द रूल्स एंड द रेगुलेशन वुड बी चेंजिंग. एंड एज इन टेक्नोलॉजी offers an adequate solution for the redistributed, collaborative and workplace. So during this lockdown, technology is the only thing which has made the entire world integrated, and everyone because of technology it is very much possible that their people are working from their home. And at the same time, people are mostly joining the gig economy and increasing the employees vulnerability. So the part of the gig economy which has arisen is ultimately led to the rise of basically the vulnerability which is there in the economy. तो बात करें जो गिग इकोनॉमी है उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. पहले आप ये समझ लीजिए कि गिग इकोनॉमी होता क्या है. बेसिकली कोई भी ऐसे काम जो कि टेम्पररी हो, फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पे कॉमन कोई कंपनीज बेसिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर इंटरमीडियरीज के थ्रू इन्वॉल्व है, जो हायरिंग है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो या कोई फ्रीलांसिंग की काम है, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज पार्ट ऑफ द गिग इकोनॉमी. सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, he is working for a firm who is located, suppose he is in India, he is working for a firm who is situated in USA, right? And it got his channel, जहाँ उसका channel partner है situated in Mumbai, right? तो ये मुंबई है, this is a person working in Delhi, so this will coordinate with this firm and he will redirect the work which he will be working from home, right? Work from home would be there. So this is something a part of the gig economy. इस तरह से ये overall contribution चलती है gig economy की. And the current crisis has given the rise to social protection. Basically जिस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो एक बहुत सारा कंसर्न है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द गिग वर्कर्स, इंक्लूडिंग द वेज प्रोटेक्शन, health benefits and the safety insurance. Because people who are working as a freelance, basically mostly, they do not have all these benefits regarding the health benefits, safety assurance. These things are not covered under the फ्रीलांस सेक्टर. तो बेसिकली दिस इज द पार्ट विच इज़ अ सीरियस कंसर्न कि अगर जो परमानेंट जो फुल टाइम किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है उनके लिए और जो वनरेबिलिटी गिग इकोनॉमी के साथ है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है. नाउ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ गिग इकोनॉमी की बात करें, कौन कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बेसिकली एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, उबर है, जैसे कि जोमेटो है, प्लम्बर्स who are working for Urban Clap or electrician. These are the people who are working as a freelance and they are the part of the gig world or the gig economy. And gig economy is not confined to the lower skilled job. Basically ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर जो इलेक्ट्रिशियन हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं वही इसके पार्ट है. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हाईली स्किल्ड है, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द गिग इकोनॉमी और द फ्रीलांसिंग पर्पसेस. एक गैलप स्टडी है, उनके मुताबिक 2080 की एस्टिमेट्स हैं. उन्होंने बताया कि 36% ऑफ द अमेरिकन वे वर्किंग फॉर द गिग वर्किंग अरेंजमेंट इन सम कैपेसिटी.
तो टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी 36% लोग ऐसे हैं यूएस में जो कि गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं. दे आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और दे आर वर्किंग फ्रॉम होम or they have some other engagement which is contributing somewhere to the gig economy of the country. Now बात करें Deloitte report on gig economy. आपको पता होगा Deloitte एक firm है जो कि basically financial management related जो भी risk assets वगैरह होती हैं इनकी ये reports देती हैं. तो उन्होंने report दिया था अप्रैल में. They said कि the future of work has accelerated and the Indian organization is considering to expand its share of gig economy and dependence on the full-time worker would be reducing. So जिस तरह से लॉकडाउन के बाद में लोगों को ये चीज़ें पता चल गई है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, दे फील कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी रिड्यूस डाउन बिकॉज द वर्क वॉज वेरी मच पॉसिबल फॉर द लेस नंबर ऑफ पीपल. तो कम लोगों के साथ भी दे वर एबल टू वर्क. सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, जो परमानेंट फुल टाइम मेंबर उनको ऑफिस में रखने हैं उसको रिड्यूस करके उनको वो बेसिकली फ्रीलांस करा रहे हैं या वर्क बेसिस पे काम दे रहे हैं. तो जिस तरह से सिंकरिंग हो रही है जॉब की एंड द असाइनमेंट बेस्ड वर्क वुड बी बिकमिंग द नॉर्मल. सो दिस इज व्हाट वाज प्रेडिक्टेड बाय द डेलॉइट रिपोर्ट. और डेलॉइट ने ये भी कहा है कि जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं दे वुड बी वर्किंग फ्रॉम होम एंड दैट कुड बी एन डिमांड इन द मीडिया हाउसेज. ऐसे लोग ज़रूरत नहीं है कि वो ऑफिस में बैठ करके 9 to 6 का शिफ्ट करें एंड देन ओनली दे विल गेट द पे आउट. ये है भी है कि वो अपने काम के हिसाब से भी काम कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मान लो कि नेटफ्लिक्स की कंपनी है, दे वुड बी सीकिंग एन एआई एक्सपर्ट. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बंदा एक्सपर्ट होगा दे वुड बी पेड ऑन द आर्ली बेसिस एंड दे विल पर्सनलाइज स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज हाउ the gig economy will work in future and this is the prediction, this is a report which has come up by the Deloitte. ना बात करें गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है एज अ पॉजिटिव नोट के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे कैसे काम कर सकती है. तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर का काम कर सकती है जहाँ पे वो पार्टनरशिप कर सकती है प्राइवेट सेक्टर के साथ टू क्रिएट अ यूनिफाइड डेटाबेस टू प्रोवाइड एफिशिएंट हायरिंग सॉल्यूशन. जैसे प्राइवेट कंपनीज हायरिंग करें तो गवर्नमेंट क्या एक मीडिएटरशिप का काम कर सकती है, लोगों को चैनलाइज कर सकती है उस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए, राइट. Now the second, people would be working from home of their choice or compulsion. अभी कोविड-19 के बाद या तो बहुत लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं या बहुत लोगों का कंपल्शन भी है कि they are working with their wage loss. काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं who have been basically after working from home there would be the deduction of the salary was somewhere close to 10 to 30%. इतना डिडक्शन हो रहा है. Now, Karnataka government ने यहाँ पे कुछ एक initiatives लिया है. They have reported to commence introduction where the new labor legislation would focus on the gig economy. So according to work, they will just distribute the work according to their demand और उसके accordingly लोगों को काम दिया जाएगा. And for educated youth, this would come to be the first step towards the entrepreneurship. तो इस तरह से बेसिकली कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी बढ़ावा मिलेगा. पीपल विल फाइंड इट अ सॉल्यूशन कि कहाँ पे खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं. Now coming to the other important topic, that is Tamil Nadu re-lockdown. As you have heard in the news that the Chief Minister of Tamil Nadu has announced that there will be complete lockdown in the Tamil Nadu for 12 days, right? So the government has announced a reimpose of the lockdown basically in Chennai and 3 neighboring districts of the Chennai, and the number of the cases in the Tamil Nadu has been reportedly increasing, and this is the second highest number after Maharashtra. In India, Maharashtra topped the rank of the COVID-19 basically the active cases. After that, the second number is of Tamil Nadu and third is of Delhi, right? तो चेन्नई अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द केसेस इन द तमिलनाडु. पूरे तमिलनाडु में चेन्नई में सबसे ज़्यादा केसेस हैं. एंड चेन्नई इज़ द 6th largest city of India and it's capital of the Tamil Nadu. This must be known to you. And more than 37,000 cases has been confirmed. And basically 50,000 infected were making one of the largest hotspot in India. And it is this is not the city that has, this is the only city that has reimposed the lockdown after the infection. और कोई भी ऐसा शहर नहीं है इंडिया में जिन्होंने दोबारा से लॉकडाउन किया है, बट चेन्नई तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट which have reimposed the lockdown. और बात करें बेसिकली इट हैज़ द 4th largest case load in the world and with more than 35,000 confirmed cases. This is in India. तो इंडिया में अभी भी जो केसेस हैं we were first in the top 10, फिर उसके बाद टॉप 7 में. नाउ वी आर इन द टॉप 3. सो द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट. वी माइट ओवरटेक US and we can become the number 1 country in the active infection cases if things are not better well controlled.
नाउ द डेली रिपोर्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन वर स्पीकिंग स्पाइक हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और तमिलनाडु वे द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट. जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं रेशियो वाइज, तो तमिलनाडु रैंक नंबर 1. वैसे तो महाराष्ट्र इज नंबर 1, जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज देयर इन द तमिलनाडु इटसेल्फ. Now what allowed under the new lockdown, क्या क्या चीज़ों को अलाउ की गई है, because 12 days there would be complete lockdown, but only the essential services would be allowed. Petrol things would be given a chance. Auto rickshaws and private vehicles will not be allowed during this time. Food delivery can be there through the takeaways, and the permitted restaurant would be only remain closed shuts. And the state offices would be opening only with the 33% of the total staff. And the essential services like hospital, labs, pharmacies will continue to function as usual, right? So these are the things which government has taken a concrete action amid to overcome the infection level, and this is very necessary for the country like India की तो और भी जो major states हैं like Delhi और यूपी हो, मध्य प्रदेश we don't have much cases, महाराष्ट्र, so यहाँ पे इन सारे states को भी इस तरह के actions लेने की ज़रूरत है. Now क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं? द ओनली वे टू रिड्यूस द ट्रू प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल वुड बी कम्युनिटी बाय रैम्पिंग अप टेस्टिंग. जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, बिकॉज देखो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ द लेवल ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ तक चीज़ें फैल सकती है. एंड अगेन द थर्ड मोस्ट इज क्वारंटाइनिंग द पीपल एंड आइसोलेटिंग देम टू whoever is the positive, right? जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनको प्रॉपर क्वारंटीन करके दे शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट प्लेस और इन अ हॉस्पिटल. नाउ थर्ड टॉपिक इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर. दिस इज रिटन बाय कलराज मिश्रा. ही इज अ गवर्नर ऑफ राजस्थान. ही वाज अ फॉर्मर, बेसिकली ही वाज देयर इन द दिस NDA 2.0 में वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में मिनिस्टर भी रहे हैं. प्रेजेंटली सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ राजस्थान. सो ही सेड कि इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वहाँ माइग्रेंट वर्कर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो नीड अ कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दैट इंक्लूड रिलीफ, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस. सो द इश्यूज ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैज़ इवॉल्व वाइड स्प्रेड डिबेट एंड द डेवलपमेंट इश्यूज इन इंडिया. बात करें कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स की, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, दे अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स. इन स्टेट्स से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो पॉपुलेशन है वो दूसरे स्टेट्स में गए हैं. नाउ दीज वर्कर वर मेनली एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, जो सेमी स्किल्ड वर्क होती है, कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक वर्क है, टेक्सटाइल है, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. ना बात करें इंडिया के जो 5 ईयर प्लान है, वहाँ पे जो माइग्रेशन है दैट वाज नॉट एडिक्वेट, और जो फैक्ट्रीज में जिस तरह से प्लान करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है. सो दिस इज सरप्राइजिंग दैट जो माइग्रेंट इम्पैक्ट्स है, जो कम्पिटिटिवनेस है, जो प्रोडक्टिविटी है और जो जॉब्स है, इनमें इसका काफ़ी रिपरकशन देखने को मिला है. जो टोटल वर्कफोर्स है हमारी, दैट इज़ 465 मिलियन वर्कर्स, उसमें 95% जो लोग ऐसे हैं, बेसिकली 91% लोग ऐसे हैं, talking about 91% people are like this who are working for the informal sector. तो आप समझ सकते हो जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में 91% काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर. हमारी इकोनॉमी सर्वे कहती है 2017 की कि 139 मिलियन सीजनल माइग्रेशन होते हैं. सीजनल माइग्रेशन का मतलब होता है किसी एक जॉब से शिफ्ट करके दूसरे पे शिफ्ट करना, सीजनल माइग्रेशन, राइट. एंड द लॉकडाउन हैज़ द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज. क्या क्या है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज लॉकडाउन के? सो फर्स्ट इज कि लॉकडाउन हिट एग्रीकल्चर, जो हमारा सप्लाई चेन है, फूड है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि लोगों को PDS नहीं मिलेगी, फूड्स प्रॉपर जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड शॉप्स हैं वहाँ से नहीं मिल पाएंगे. तो दिस इज़ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉकडाउन. उसके बाद जो मेजर ऑफ एग्रीटेरियन स्टेट्स है, दे आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ लेबर. तो लेबर के शॉर्टेज की वजह से क्या होगा कि जो उनकी फसल कटनी है या फिर जो मार्केट प्रोड्यूस जो एक्चुअल मार्केट तक जानी है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगी. सो दिस वुड बी अगेन इम्पैक्टिंग सीवियरली, और जो कहीं ना कहीं जो मार्केट सप्लाई है उसमें भी इसका बेसिकली डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा. द फैक्ट इज वहाँ पे उस स्टेट में प्रोडक्शन है, बट द प्रोड्यूस विच इज़ देयर कैन नॉट बी रीच टू द मार्केट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लेबरर्स. और COVID-19 का जो अर्बन हॉटस्पॉट है, that has the urban shortage of the seasonal migrant affecting the construction and manufacturing sector, right? And the cost of the people roughly double that for the goods in India. कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं. तो फर्स्ट इज कि जो रजिस्टर्ड जो बेसिकली जो रूल्स बनाई गई थी
कि सेंट्रल रजिस्टर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स में लोगों को रजिस्टर करना है जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स हैं, उनकी जो रेगुलेशन है 1979 के थ्रू, बट इसमें सारी चीज़ें, ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, हेल्थ वर्कर कंडीशन कोड 2019 है, दे वर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एंड द लीगल प्रोटेक्शन। सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज बहुत सारे स्टेट हैं दे हैव स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड इट। और जो प्रपोज्ड कोड थी, उन्होंने 13th बेसिकली जो 13 लेबर कोड है उनको इंक्लूड करके एक प्रॉपर बनाई गई थी, जिसमें कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी के जो रूल्स और लॉ थे उसको सिंगल लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सिंगल लॉ जो है इसमें 13 रूल्स को ऑलरेडी मर्ज कर दी गई है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होगा कि सारे स्टेट्स जो हैं ये जो कोड है इसको पूरी तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें और जो सारी बेनिफिट्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर को दी जाए। Now, क्या वे अहेड है? बेसिकली वी नीड टू प्रोवाइड एन अनडिवाइडेड अटेंशन टू द वर्किंग कंडीशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एंड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू फॉर्मुलेट अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि उसको रोजगार भी मिले, नो दे गेट द एम्प्लॉयमेंट, दे गेट द जॉब सिक्योरिटी, दे गेट द मनी and they get the essential services which is required. And the issues of migrant worker need to be considered in its entirely formulated in the speedy and effective response, right? And implementation of the reports of the task force migration expansion outreach through the integrated child development and आंगनवाड़ी services. तो ये सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी है कि टास्क फोर्स जो माइग्रेशन वर्कर रखा है वहाँ पे, या जो हमारे ICDS की आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज है उसको भी सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। Now the last news for the day, that is US decoupling from China. This as US has warned that it would be decoupling from the China, and despite the power privileges, they move from the trade deal. तो US ने काफ़ी ज़्यादा sanctions लगाए हैं चाइना पे, and there's a not very good relationship with it coming with China and basically United States. So tension has been mounting between the US and China on number of the front, including the trade. एंड दिस ऑल हैज स्टार्टेड, द वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उनकी जो प्रोजेक्शंस हैं उनके मुताबिक द इकोनॉमीज हैज स्लोड इन 3 years एंड द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैज वीकन एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इज सीवियरली लाइकली टू इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, राइट। ना बात करें कुछ बेसिकली 2018 की, तो वहाँ पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने चीज़ों को बताया है कि जहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बेसिकली सीवियरली इम्पैक्ट होगी, टारगेटिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम, सोलर पैनल्स, वॉशिंग मशीन्स, दे वुड बी स्पेसिफिकली टारगेटेड इन द इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना। सो दिस वुड सीवियरली इम्पैक्ट इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स। और इन 2019 जो यूएस ने इंक्रीज किया था टैरिफ को, दैट वाज 25%, एंड चाइनीज रिपोर्टेडली रेजिंग द टैरिफ ऑन द सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट दैट वर ऑलरेडी इन द टैरिफ। तो ट्रेड वॉर के वजह से इसकी जो बेसिकली पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखी गई है, इंडिया के लिए भी काफ़ी नेगेटिव है, और जो वैसे कम्पिटिटिव जो मार्केट थी उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हुई है बिकॉज चाइना इज इमर्जिंग एज अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग हब इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। सो देखना होगा आगे कैसे आगे फॉरवर्ड होगी, बिकॉज यूएस में इलेक्शन है, तो दिस कैन बी समथिंग विच ऑल्सो बी रिलेटेड टू द पॉलिटिकल स्टंट एज वेल। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सके यूएस के खिलाफ, बट कंक्रीटली अभी कुछ तक एक्शंस नहीं हुए। दिस इज समथिंग which US president has reiterated that they will be doing. Still, they have not come with any conclusive or something which is very inclusive or conclusive actions पे वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, right? Now मैं आपको बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग चैलेंज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएगी और अपने आंसर आप टेलीग्राम चैनल में ही पोस्ट कर सकते हैं 6 PM तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो विजिट करें और पार्टिसिपेट करें आंसर राइटिंग चैलेंज पे। बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो जो कल के सवाल थे वो नेशनल पॉपुलर NPR जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजेस, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल लेवल एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द सिटीजनशिप आइडेंटिटी एक्ट 2003, and the process of updating NPR would be carried out under the aegis of Register General and ex officio census of the Commissioner of India। तो ये दोनों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो भी सी है। बेसिकली मैंने आप राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा था। सो 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट राजा राम मोहन राय इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, was a man of versatile genius. The Brahmo Samaj established by him was earlier reform and the modern type of the influence by the Western ideas.
जो स्टेटमेंट 3 है वो इनकरेक्ट है कि राजा राम बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वालिटी. He put faith in the monotheism. So these are the explanation of the two questions. Now moving to the today's question of the day. So the first question is from the economy. This can be also for part of the current affair. With reference to generalized system of preference, consider the following statement. It is a preferential trade system under which developed nation and duty-free entry goods would be there in the market. This is the first statement. Now the second statement is it helped exporter to penetrate the market and increase the market share. So which among the following statement is correct? A, B, C or D? What you can do, you can eliminate also. And GSP, the generalized system of preference, is again a very important topic. A very possible that prelims में इस तरह से सवाल आए और आप इसको हिंदू जो करंट अफेयर्स जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो आप एडिटोरियल देख रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी. या अगर आप कोई एप्टी प्लस के हमारे जो मंथली कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल में भी चीज़ें आप आराम से कवर कर पाएंगे. नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन है विद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिलीजियस प्रैक्टिस ड्यूरिंग द Mauryan dynasty. So there was no multiple form of worship in the religious practices. This is the first statement. Now the second statement is the worship of Yaksha's mother goddess were prevalent during this time, and Buddha has become the most popular and social and religious movement. Right? So these are the three statements. So you have to consider each of them and tell me the correct answer in the comments down below. The option is A, B, C, and D. Right? So do write your answer in the comment section. And I would like to tell you that we are organizing a live session today. So this would be on evening from 4 p.m. to 5 p.m. So do make sure that you watch this. PSIR and geography दोनों से related आपको जो query है वो आप आराम से यहाँ पे address कर पाएंगे. And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी और concern हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.